Good morning. I'm Dr. Surya Shaheen, and today I will discuss a very important topic from research aptitude. This topic is very important for PhD research scholars and also for the aspirants of UGC NEET JRF. So the topic is probability sampling. There are two broad categories of sampling. One is probability sampling and the another is non-probability sampling. There are four types of probability sampling and four types of non-probability sampling. मतलब probability sampling के four types होते हैं और non-probability sampling के भी four types होते हैं. So today I will discuss in detail about all the types of probability sampling. So before it, let me tell you about what is sampling technique. Sampling technique क्या होता है? It means how a researcher selects a sample for research study. Sampling technique is how a researcher selects a sample for research study. And on the basis of that sample, the researcher collects the data and by using different tools, he or she analyzes the data and draws the conclusion. रिसर्च के वैलिड होने के लिए जरूरी है कि जो हमारा सैंपल है उसमें कोई एरर न हो. If there is any error in the sampling, it means the result drawn on the basis of that sampling will not be generalized or it will not give the desired result. क्योंकि अगर आपका सैम्पलिंग ही सही नहीं है तो उस बेस पे जो आप डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं वो सही नहीं होगा. सपोज किसी रिसर्चर को एंटायर पॉपुलेशन पे रिसर्च करना है तो यह प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि वह एंटायर पॉपुलेशन को स्टडी करे, क्योंकि अगर वह रिसर्चर एंटायर पॉपुलेशन को स्टडी करेगा तो काफ़ी टाइम टेक करेगा और कॉस्ट भी काफ़ी लगेगा और ज़्यादा रिसोर्सेज की नीड होगी. फिर इतने बड़े लेवल पे डाटा को एनालाइज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है. तो क्या किया जाता है आगे? रिसर्चर को आगे क्या करना है? तो इसलिए रिसर्चर क्या करता है कि एक उसका सैंपल लेता है और सैंपल के बेस पे रिसर्च करता है. क्लियर? Now I discuss the different techniques of sampling. What is probability sampling? What is probability sampling? In the probability sampling, there is an equal chance for every member of the participants to be selected for research. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी रिसर्चर रिसर्च कर रहा है उसमें जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं उसके सारे मेंबर्स का इक्वल चांस है कि वह सैंपल में सेलेक्ट हो जाए. जितने भी रिस्पोंडेंट्स है उसका इक्वल चांस है कि वह सैंपल में सेलेक्ट हो जाए. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यही होता है. नाउ आई टॉक अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. In non-probability sampling, there is no equal chance for every member of the respondents to be selected for research study. यानी non-probability sampling में रिसर्चर उन्हीं मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं रिसर्च स्टडी के लिए जो उस रिसर्च क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं. ध्यान रखना है आपको, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर उन्हीं मेंबर को सिलेक्ट करते हैं रिसर्च स्टडी के लिए जो उस रिसर्च क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और जो लोग उस रिसर्च क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं उससे सेलेक्ट नहीं किया जाता है रिसर्च स्टडी के लिए. क्लियर? सो दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. अब नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. क्लियर?
Now I explain the different types of probability sampling. There are 4 types of probability sampling. And first is simple random sampling. Second is stratified sampling. Third is systematic sampling. And fourth is cluster sampling. So now I deal first simple random sampling. इसको कैसे समझेंगे? सपोज आपका पॉपुलेशन है 1 लाख और आपने 500 रिस्पोंडेंट्स सिलेक्ट किया है सैंपल के लिए, और आपने जो रिस्पोंडेंट्स सेलेक्ट किया है वह रैंडम बेसिस पे होगा और हर एक रिस्पोंडेंट को इक्वल चांस है कि वह सैंपल में सेलेक्ट हो जाए। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आप यहाँ जो भी रिस्पोंडेंट आपने सेलेक्ट किया है वह रैंडम बेसिस पे होना चाहिए, रैंडम बेसिस पे, और हर रिस्पोंडेंट को इक्वल चांस है कि वह सैंपल में सेलेक्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, लॉटरी सिस्टम, random number generator, etc. are the methods of simple random sampling. So this is clear. Now next is stratified sampling. In stratified sampling, the entire population is divided into mutual exclusive groups, and then every member of the group has equal chance of being selected for research. Means यहाँ जो पॉपुलेशन डिवाइड होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप में होगा। कहने का मतलब यह है कि एक ग्रुप का मेंबर किसी दूसरे ग्रुप में शामिल नहीं होगा, सब ग्रुप अलग अलग होगा और एक ग्रुप का मेंबर दूसरे ग्रुप में शामिल नहीं होगा, और फिर हर ग्रुप से रिस्पोंडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, वो भी प्योरली रैंडम बेसिस पे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ भी प्योरली रैंडम बेसिस पे ही रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ग्रुप डिवीजन एज बेस पे हो सकती है, जेंडर बेस पे हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट बेस पे हो सकती है, या आप किसी अदर तरह के आप बेस ले सकते हैं। सो दिस इज अबाउट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नाउ थर्ड इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. In systematic sampling, the entire population is arranged in ascending or descending order. पॉपुलेशन को यहाँ या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है रिसर्चर। यहाँ पर रिसर्चर फर्स्ट रिस्पोंडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करता है एंटायर पॉपुलेशन से, लेकिन सेकेंड और थर्ड रिस्पोंडेंट को सिस्टमैटिक सिलेक्ट करता है। यहाँ पर इस सैम्पलिंग में आपको ध्यान रखना है कि रिसर्चर फर्स्ट रिस्पोंडेंट को रैंडमली सिलेक्ट करता है इंटायर पॉपुलेशन से, लेकिन सेकेंड और थर्ड रिस्पोंडेंट्स को सिस्टमैटिकली सिलेक्ट करता है। इसमें सैम्पलिंग इंटरवल को पहले कैलकुलेट करेंगे। अब ये सैम्पलिंग इंटरवल कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो जो टोटल पॉपुलेशन है उसको सैंपल साइज से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और यहाँ आपका सैम्पलिंग इंटरवल मिल जाएगा। सपोज आपका पॉपुलेशन अगर 1000 है और सैंपल साइज आप 100 आपने ले लिया, तो क्या करना है, जो टोटल पॉपुलेशन है उसको सैंपल साइज से आप क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो टोटल पॉपुलेशन अगर हम 1000 ले रहे हैं तो उसमें सैंपल साइज हमने क्या लिया, इसमें 100, और इसको हम डिवाइड जब करते हैं तो हमारा सैम्पलिंग इंटरवल 10 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सैम्पलिंग इंटरवल 10 हो गया। सपोज रिसर्चर ने रैंडमली नंबर 6 पे रिस्पोंडेंट था, उसको पिक कर लिया। आप 1 से लेकर 10 तक आपने लिख दिया, और वहां पर अगर आपने नंबर 6 पे आपने जो रिस्पोंडेंट है उसको आपने सिलेक्ट कर लिया, तो फिर सिलेक्ट करने के बाद जब नेक्स्ट रिस्पोंडेंट अब कैसे बनेगा, तो जो रिसर्चर ने 6 नंबर पे रिस्पोंडेंट को लिया है वह बन जाएगा 6 + 10। तो 6 नंबर पे लिया, अब +10 क्या है कि यहाँ पर आपका सैम्पलिंग इंटरवल 10 है, तो 6 और +10 आपका 16 हो गया। तो इसी तरह से अब थर्ड रिस्पोंडेंट, फोर्थ रिस्पोंडेंट इसी तरह से बन जाएगा। तो अगर यहाँ पर आपका फर्स्ट रिस्पोंडेंट 16 बना है, 6 + 10 16, तो नेक्स्ट रिस्पोंडेंट कैसे बनेगा, तो फिर नेक्स्ट रिस्पोंडेंट 16 + 10 26, थर्ड रिस्पोंडेंट 26 + 10 36, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फोर्थ इज क्लस्टर और एरिया सैम्पलिंग. Cluster or area sampling is used where there is a large population.
In the cluster sampling, the entire population is divided into small groups, which is called clusters. ये जो clusters होते हैं वो एरिया के बेस पे बनाए जाते हैं, इसलिए इसे क्लस्टर और एरिया सैम्पलिंग भी कहते हैं। कई बार आपको नेट में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जब किसी थियरी का दूसरा नाम होता है, यानी कि क्लस्टर सैम्पलिंग को कहते हैं और आपके पास ऑप्शन दे सकते हैं। आपको एक ऑप्शन हो सकता है एरिया सैम्पलिंग, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। यानी कई बार आपको माइनर क्वेश्चन का आंसर नहीं आ पाता है, आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन कहाँ से बनता है, राइट। सो यहाँ पर हम क्लस्टर सैम्पलिंग की बातें कर रहे हैं, इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ अ प्लेस containing large population. Then he will divide the total area into groups of smaller areas, and these groups would be created on the basis of city and metropolitan areas, etc. ये सैम्पलिंग टेक्निक वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पॉपुलेशन लार्ज नंबर पे होता है, पॉपुलेशन जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होता है, वहाँ क्लस्टर और एरिया सैम्पलिंग का यूज किया जाता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर टुडे।